Hello students, welcome to our live APS classes, and this is our foundation course especially for the students from 9th to 12th. And in our foundation course, as all we know that we will cover physics, mathematics, biology and chemistry part. And in our today's live lecture we will cover the chemistry part, and the name of the chapter is metals and non-metals, and this is very important or interesting chapter for all the classes. तो before starting our live lecture, सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि कितने students जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं. So first of all, good evening to all the students who join our live APS classes. तो students अभी जुड़ रहे हैं बेटे. Before starting this lecture, we will give just the brief introduction of the chapter, that is the metals and the non-metals. So as all we know that beta metals and non-metals, this is very important and interesting chapter from the competition point of view as well as from the examination point of view. तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, in our periodic table there are 118 elements in the periodic table, and these elements are categorized into metals, non-metals and semi-metals as well as metalloids. So the classification of these elements depends upon the similarities and the difference of their properties. So depend upon the properties and the differences or the similarities in their properties. Mainly there are two types of the elements, that are metals and non-metals. Metals are generally solid except mercury, which is liquid at room temperature, whereas the non-metals are solid, liquid and gases. So majority of the elements in the periodic table that are of the metals, 92 are the metals in the periodic table, whereas 22 are non-metals and rest are the semi-metals. And these metals and non-metals are used in our day-to-day life as well as our daily life. So this is the brief introduction regarding the chapter, that is the metals and the non-metals. And now let us start our live lecture regarding this chapter, and today we will cover 21 questions from this chapter, and these are very important questions from the examination point of view as well as competition point of view. तो बेटे शुरू करने से पहले एक बार मैं दोबारा देखूंगी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं. तो जो जुड़ गए हैं बच्चे, वो मैं एक बार नाम लेना चाहूँगी उनके, जो हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं. अंकुश, प्रशांत, ईशांत, मुस्कान, अक्षिता, सानिया, सेजल, मुदित. तो बेटे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा कहूँगी कि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो वो आते रहने चाहिए. आज का जो हमारी लाइव एपीएस क्लासेस का जो टारगेट है सब्सक्रिप्शन का, दैट इज ऑफ 375. तो इस चीज़ के ऊपर आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट दे सकती है. तो आप एक चीज़ ये सोच कर लेके चलें कि मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स जो हैं आपकी सब्सक्रिप्शन के बिहार पर घर बैठकर जो है वो इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं. रिया, कार्तिक, तो आई होप कि सभी स्टूडेंट्स मैक्सिमम जुड़ चुके हैं. तो चलो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको दे दी है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट मेलेबल मेटल इज. सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल कौन सा है? सबसे मेलेबल धातु कौन सी है? योर ऑप्शन ए इज सोडियम, बी सिलिकॉन, सी गोल्ड एंड डी इज लेड.
तो बेटे आज के चैप्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, जिनको कि आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। अक्षिता ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, एंड यू हैव गिवन द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। ईशांत, सानिया, सेजल, अंकुश मोदगिल, कृतिका, अकृत, तो मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दे दिया है, और जिन्होंने नहीं दिया है बेटे वो भी कोशिश करें, क्योंकि आंसर देने में सभी स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। मुद्दत, तो बेटे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दे दिया है। सो द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द मोस्ट मेलेबल मेटल इज gold. Most malleable metal is gold. It is your question number 1, and your option C is the right answer for the question number 1. Now shift to the question number 2, and your question number 2 is cinnabar is an ore of. Cinnabar is an ore of option A mercury, B copper, C calcium, and D is lead. There are 4 options regarding the question number 2, and your question number 2 is cinnabar is an ore of either mercury, copper, calcium, and lead. So hurry up beta, you have to be given the answer within 5 seconds. तो बेटा मैं नाम लूंगी जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है और सही आंसर दिया है जिन्होंने। अक्षिता, ईशांत, बेटा ऑप्शन डी जो है दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। रिया, कार्तिक, सानिया, सेजल, मुद्दित, अंकुश, तनु, Prashant, beta option C is the wrong option. Cinnabar is not an ore of the calcium. So beta the right answer for the question number 2 is cinnabar is an ore of mercury. Mercury. So option A is the right answer for the question number 2. सो वेल डन स्टूडेंट्स, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो रही है सभी स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस का आंसर देने में, एंड दिस इज रियली वेरी अप्रिशिएटिंग स्टेप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 3, विच मेटल इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन एज ऑल वी नो दैट, सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन में जो मेन कंस्टिट्यूएंट है मेटल का, वो कौन सा मेटल है जो मेन कंस्टिट्यूएंट है हीमोग्लोबिन का? ऑप्शन ए आयरन, बी सोडियम, सी कॉपर, एंड डी इज मैग्नीशियम. एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ये क्वेश्चन जो है आपका नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है. Which following metal is the constituent of hemoglobin? So I think all the students have given the right answer. Akshita, Ishant, Riya, Karthik, Kritika, Akrit, Sania, Tanu, Prashant, Mudit, Sejal. So all the students have given the right answer for the question number 3, and the right answer for the question number 3 is iron is the metal. Iron is the metal that is the main constituent of the hemoglobin. So option A is the right answer for the question number
3. Next is your question number 4. So right option is iron. Now your question number 4 is the liquid non-metal is. क्योंकि जब आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने कहा था कि जो नॉन मेटल्स हैं दीज आर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, ये तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं जो नॉन मेटल्स हैं, वेयर एज metals are generally hard solids except mercury which is liquid at room temperature. So your question is the liquid non-metal is option A mercury, B bromine, C silicon and D is sulfur. It is your question number 4. तो सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दे दिया है और सभी ने इसका आंसर जो है मैक्सिमम सही दिया है. ईशांत, कृतिका, अकृत, प्रशांत, रिया, कार्तिक, सेजल, सानिया. तो और जो स्टूडेंट्स बेटे जो रह गए हैं वो भी अपनी पार्टिसिपेशन जरूर रखें क्वेश्चंस का आंसर देने में. मुद्दित बेटा ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 4. सो लेट अस ट्राई अगेन. दोबारा आप कोशिश करें. लेट यू ट्राई अगेन. दोबारा से आप कोशिश करो बेटा इसकी. सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 4 द लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमिन. Bromine. So option B is the right answer for the question number 4. Now shift to the question number 5. Now shift to the question number 5. And your question number 5 is pure gold is equal to. It is your question number 5. Pure gold is equal to. Pure gold जो है वो किसके इक्वल है? Option A is 24 carat, B 100 carat, C 22 carat and D is 1000 carat. Pure gold is equal to either 24 carat, B 100 carat, C 22 carat and D is 1000 carat. It is your question number 5. Yes, Prashant beta, you have given the right answer. Riya, Karthik, Ishant, Kritika, Sania beta, option D is the wrong option. Pure gold is not equal to 1000 carat. So let you try again. दोबारा कोशिश करें बेटे आप इसका आंसर देने की. Pure gold is equal to either 24 carat, 100 carat, 22 carat or 1000 carat. So beta pure gold is equal to 24 carat. 24 carat. So option A is the right answer for the question number 5. Now shift to the question number 6. तानिया बेटा लेट हो गए आप. Now it is 7:15. So I think today again you are late. आज दोबारा फिर आप लेट हैं. Good evening beta. Now our 6th question is magnesium dissolves in hot water to form. Magnesium को अगर hot water में dissolve किया जाए then it forms MgO, that is magnesium oxide, B MgOH twice, that is magnesium hydroxide, C MgOH magnesium hydroxide, D MgO either magnesium oxide multiplied by magnesium hydroxide. अगर मैग्नीशियम को हॉट वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो इट विल फॉर्म MgO, MgOH twice, MgOH
MgO multiply by MgOH twice. चैनल को बेटा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो सब्सक्रिप्शन का टारगेट है आज का दैट इज ऑफ 375। मुद्दित बेटे ने सही आंसर दिया है, कृतिका ने भी सही आंसर दिया है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है। रिया कार्तिक ने भी सही आंसर दिया है। सानिया ईशांत सही आंसर है बेटा। तनु अक्षिता तानिया सभी ने बेटे सही आंसर दिया है। प्रशांत ने भी सही आंसर दिया है। सो बेटा रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। सो व्हेन मैग्नीशियम डिसॉल्व्स इन हॉट वाटर, so it is your question number 6. It is your magnesium. When magnesium dissolves in hot water, it is your hot water. When magnesium dissolves in hot water, it forms magnesium hydroxide plus hydrogen gas. So it forms magnesium hydroxide. So when magnesium dissolves in hot water, it forms magnesium hydroxide. So option B is the right answer for the question number 6. Now shift to the question number 7. तो बेटे सभी स्टूडेंट्स जो हैं इन क्वेश्चंस को नोटबुक्स में लिख रहे हैं। आई नीड योर आंसर। मुझे इसका आपका आंसर चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक्स में राइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ में आप इसका कमेंट भी डालें। और नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 7। डैश आर एलॉयज ऑफ आयरन एल्यूमिनियम। बेटे जब तक मैम क्वेश्चन नहीं पूछें तब तक आप इसका आंसर ना दें। ये मैंने पहले भी कहा था आपको। डैश आर एलॉयज ऑफ आयरन एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट। योर ऑप्शंस आर ब्रास, ब्रोंज, सोल्डर, एलिनिकोज। एलिनिकोज। वेरी गुड बेटे, सभी स्टूडेंट जो हैं वो इसका आंसर लिख रहे हैं, क्वेश्चंस को लिख रहे हैं अपनी नोटबुक्स में। वेरी गुड बेटे, बहुत अच्छे। ईशांत अक्षिता बेटे आप भी लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं? आई नीड आंसर फ्रॉम योर साइड। सो इट इज योर क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दे दिया है एंड सही ऑप्शन दी है ईशांत, अक्षिता, कृतिका, अकृत, तनु, सेजल, मुद्दित, तानिया, सानिया। यस ऑल द स्टूडेंट्स। सानिया बेटे आपने आंसर नहीं दिया है कि आप क्वेश्चंस को नोटबुक में नोट करें या नहीं। अंकुश मोदगिल का भी रिस्पॉन्स नहीं आया है कि आप नोट कर रहे हैं क्वेश्चंस को या नहीं कर रहे हैं नोट बेटे अपनी नोटबुक में। वेरी गुड बेटे, तो सभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर दिया है। सो एलिनिकोज, एलिनिकोज, एलिनिकोज are the alloys of iron, aluminium, nickel and cobalt. So it is your question number 7. That is Elinikoes are the alloys of iron, aluminium, nickel and cobalt. So option D is the right answer for the question number 7. Very good beta. Now shift to the question number 8 and your question number 8 is dash exists as a dimer. इनमें से कौन है जो डाइमर एग्जिस्ट करता है? योर ऑप्शंस आर Hg2 2 पॉजिटिव, B Mg2 पॉजिटिव, C Cu2 पॉजिटिव एंड D इज
Ca2 positive. It is your question number 8. ऑप्शन बी बेटा रॉन्ग ऑप्शन है. ऑप्शन बी इज द रॉन्ग ऑप्शन. यस बेटे आंसर देने की कोशिश करें. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एग्जिस्ट एज अ डाइमर एंड योर ऑप्शंस आर Hg22 positive, Mg2 positive, Cu2 positive or Ca2 positive. Option B is the wrong option. Option C भी wrong option है बेटा. Option B wrong option. Option C again wrong option है. Let you try again. दोबारा से कोशिश करें बेटे आप. Out of the following which exist as a dimer. Option C is the wrong option बेटा. So बेटा regarding the question number 8, C option wrong option है. Yes, option तानिया बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका. Regarding the question number 8, that is Hg22 positive exist as a dimer. That is Hg22 positive. It exists as a dimer. So option A is the right answer for the question number 8. Now shift to the question number 9. बेटे आप की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होने की वजह से मैडम में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है. सभी स्टूडेंट्स जो वो अपनी पार्टिसिपेशन रखें. यस बेटा रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज द रॉन्ग ऑप्शन बेटा. नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 9 and your question number 9 is which of the following metals is less reactive than hydrogen. Which of the following metals is less reactive than hydrogen? Your options are copper, B zinc, C magnesium and D is the lead. Which of the following metals is less reactive than hydrogen? Option D is the wrong option beta. I repeat my question again. Which of the following metals is less reactive than hydrogen? And your options are copper, zinc, magnesium, lead. एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा. ऑप्शन डी रॉन्ग ऑप्शन है. ऑप्शन डी इज द रॉन्ग ऑप्शन बेटा. प्रशांत बेटे ने भी सही आंसर दिया है. अंकुश मोदगिल यू ऑल्सो हैव गिवन द राइट आंसर. तनु बेटा ऑप्शन डी इज द रॉन्ग ऑप्शन. दिस मेटल इज नॉट लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. lead is not less reactive than hydrogen. So regarding the question number 9, copper is less reactive than hydrogen. Copper is less reactive than hydrogen. So option A is the right answer for the question number 9. Now shift to the question number 10. आज का हमारा जो टारगेट है क्वेश्चंस का that is of 21 questions
9 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, 10th क्वेश्चन पर हम शिफ्ट कर चुके हैं। रेस्ट आपके पास 11 क्वेश्चंस और बचते हैं आज के लाइव लेक्चर के, एंड इट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विगोरसली विद ऑक्सीजन? इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि विगोरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ? ऑप्शन ए इज जिंक, बी मैग्नीशियम, सी सोडियम, डी कॉपर। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following metals react vigorously with oxygen? टेंथ के बेटे ऑप्शन बी रॉन्ग ऑप्शन है प्रशांत बेटा। मैग्नीशियम नॉट रिएक्ट विगोरसली विद ऑक्सीजन। अक्षिता ने सही आंसर दिया है, ईशांत, मुस्कान, both of them given the right answer. Option सानिया बेटा ऑप्शन बी is the wrong option. Magnesium is not vigorously react with oxygen. तानिया ने भी सही आंसर दिया है, मुद्दित, रिया वर्मा, कार्तिक वर्मा। बेटा ऑप्शन ए is the wrong option. Zinc is not the metal that reacts vigorously with oxygen. So the right option for the question number 10, that is sodium is the metal. Sodium is the metal that reacts vigorously with oxygen. So your option C is the right option because sodium is highly reactive metal. Sodium जो है वो highly reactive metal है, and due to this reactivity सोडियम रिएक्ट विगोरसली विद ऑक्सीजन। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाई सोडियम मेटल केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल? सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। उसको केरोसिन ऑयल में सोडियम मेटल को इसलिए रखा जाता है बिकॉज सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव मेटल एंड इट कैचेस फायर इजिली। So the right option for the question number 10 is sodium reacts vigorously with oxygen. Cecil beta option A is the wrong option. Sania option A is the wrong option. Zinc is not the metal that reacts vigorously with oxygen. Now shift to the question number 11. Which of the following is least reactive with dilute hydrochloric acid? इनमें से कौन सा ऐसा है जो least reactive है and it reacts with dilute hydrochloric acid? Option A is copper, B is zinc, C magnesium, and D is the sodium. And it is your question number 11. Which of the following is least reactive with dilute HCl? Copper, zinc, magnesium, sodium. बेटे हरी अब जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सिंपल हैं। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव विद डाइल्यूट HCl? ऑप्शंस आर कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम। इट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। रिया बेटा ऑप्शन सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। मैग्नीशियम इज नॉट लीस्ट रिएक्टिव विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो लेट यू ट्राई अगेन। दोबारा से कोशिश करें, आप अपने माइंड के ऊपर जोर जरूर डालें, आप स्ट्रेस करें कि कौन सा जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ईशांत, मुस्कान, बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा आप लोगों ने। सानिया बेटा ऑप्शन सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। मैग्नीशियम इज नॉट लीस्ट रिएक्टिव विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तानिया यू ऑल्सो हैव गिवन द राइट ऑप्शन बेटा। लेट यू ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें आप इसकी। सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 11,
Copper is least reactive with dilutes HCl. Copper is least reactive with dilute HCl. तो कॉपर जो है it is least reactive with dilute hydrochloric acid. So now all the students have given the right answer. So it is your question number 11. Now shift to the question number 12. And your question number 12 is, it is your question number 12, and your question number 12 is, which metal is used for making foils used in making of food materials? मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जो खाने को रैप करते हैं, फूड को रैप करते हैं, तो उनमें जो रैप करने वाली जो फॉयल होती है that are used for packing of food materials, वो किस मेटल की बनी होती है? ऑप्शन ए कॉपर, बी प्लैटिनम, सी एल्यूमिनियम एंड डी इज सोडियम. आई थिंक बेटा इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो इसका आंसर बेटा फटाफट होना चाहिए आपका. हरी अप, मूव फास्ट. सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 12, अक्षिता ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. सानिया, ईशांत, मुस्कान, मुदित, तानिया, कृतिका, सेजल, रिया वर्मा, कार्तिक वर्मा. सो सभी स्टूडेंट्स ने बेटे इसका सही आंसर दिया है क्योंकि क्वेश्चन जो था वो बहुत सिंपल था. So aluminium is the metal that is used for making foils that are used in packing of food materials. That is aluminium. So option C is the right answer for the question number 12. बेटे आपके लाइक्स जो है वो आते रहने चाहिए. Now it is your question number 13, and the question number 13 is, which of the following is the sulfide ore of copper? इनमें से कौन है जो सल्फाइड ओर है कॉपर का? ऑप्शन इज एजुराइट, बी कॉपर ग्लैंस, सी क्यूप्राइट एंड डी इज द मेलाकाइट. Which of the following is the sulfide ore of copper? Azurite, copper glans, cuprite, malachite. तो बेटा रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 13, अभी एक ही बच्ची ने इसका आंसर दिया है और बिल्कुल सही आंसर दिया उसने. एंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज तनु. बिल्कुल सही आंसर दिया बेटे आपने. बेटे 12 क्वेश्चन की ऑप्शन कौन सी लिखी है आपने? एक और स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया. 12 की क्यों तो कोई ऑप्शन है नहीं बेटे इसमें. इसको दोबारा देखें आप. प्रशांत बेटा ऑप्शन सी रॉन्ग ऑप्शन है बेटा. क्यूप्राइट इज नॉट द सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर. Mudit beta, option C is the wrong option regarding the question number 13. Cuprite is not the sulfide ore of copper. सभी स्टूडेंट्स ने बेटे इसका रॉन्ग आंसर दिया है. सिर्फ एक तनु ने सही आंसर दिया था. Cuprite is not the sulfide ore of copper. रॉन्ग ऑप्शन है बेटे ये. So regarding the question number 13, it is your question number 13, and regarding the question number 13, copper glans is the sulfide ore of copper, that is copper sulfide, Cu2s. So copper glans is the sulfide ore of sulfide ore of copper, that is Cu2s. So the right option is option B.
सो बेटा the students have to face any problem regarding the chapter or the questions, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई आपको क्वेरीज लग रही हैं, कोई डाउट्स लग रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट लिख सकते हैं, ताकि हम कमेंट बॉक्स के थ्रू ही, कमेंट्स के थ्रू ही आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपने इसका वीडियो जो है अगर आप देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, तो आप एपीएस क्लासेस में जाकर मेटल्स नॉन मेटल्स का डिटेल में जो है इसका वीडियो लेक्चर जो है वो वहाँ पर आप सुन सकते हैं। तो बेटे यहाँ पर मैं आपका एक आंसर चाहूँगी कि अगर आपको कोई डाउट्स लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स लग रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें मुझे, ताकि फिर हम अगले क्वेश्चन पर शिफ्ट करें। हम क्वेश्चन भी शुरू कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स भी ज़रूर लिखें। इफ़ यू हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम regarding these questions. So your question number 14 is a non-metal which exists in the liquid state at 25 degrees Celsius is. A non-metal which exists in the liquid state at 25 degrees Celsius is. Your option is mercury, B silicon, C hydrogen, D bromine. बेटे मैं सभी की तरफ से आंसर चाहूंगी कि अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो भी लिखिए, अगर नहीं कर रहे हैं एवरीथिंग इज ओके, अगर सब कुछ ठीक है तो भी आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें आप। तो साथ में बेटे आपने आंसर भी देना है। अब अ नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, कौन सा इसमें से नॉन मेटल है जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में, and the condition is at 25 degrees Celsius, either mercury, silicon, hydrogen, bromine। तो सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दे दिया है और सही आंसर दिया है कृतिका, अक्षिता, ईशांत, मुस्कान, मुद्दित, तानिया, रिया, वर्मा, कार्तिक, सानिया, Tanu. So all the students have given the right answer for the question number 14, and your question number 14 is a non-metal which exists in the liquid state at 25 degrees Celsius is bromine. Is bromine. It is your question number 14. That is bromine. And your option D is the right answer for the question number 14. बेटे साथ में मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जो मैंने आपको कहा था कि अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं या आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, एवरीथिंग इज ओके, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट ज़रूर डालें आप। कुछ स्टूडेंट्स ने डाल दिया है और जिन्होंने नहीं डाला है वो भी डालें बेटे। नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 15। Now beta your question number 15 is the phenomenon of producing a characteristic sound when a metal is struck on the metallic surface is dash. The phenomenon of producing a characteristic sound when a metal is struck on a metallic surface is। ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक करेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस होती है जब हम किसी मटेरियल को स्ट्रक करते हैं मेटेलिक सरफेस के साथ, एंड दैट फिनोमिनन इज नोन एज आइदर डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, सोनैरिटी और कंडक्टिविटी। It is your question number 15. रिया बेटे आपने ऑप्शन डी दी है, कौन से क्वेश्चन की ऑप्शन है ये? जब भी आप आंसर देते हैं क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें आप।
क्वेश्चन था आपका कि ऐसा फिनोमिना जो कि एक करेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस करता है जब हम किसी मटेरियल को स्ट्रक करते हैं मेटेलिक सरफेस के साथ। अक्षिता बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है एंड दैट फिनोमिनन इज नोन एज सोनैरिटी। तो सोनैरिटी जो है वो एक तरह का ऐसा फिनोमिना है कि जिसमें जब भी दो मेटल्स को आपस में स्ट्राइक किया जाता है या एक दूसरे के साथ टकराया जाता है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मंदिर वगैरह में कई बार आपने देखा होगा कि जब घंटी बजाते हैं तो जो एक फिनोमिना है घंटी बजाने का, दैट फिनोमिनन इज नोन एज सोनैरिटी। सो रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 15, the phenomenon of producing a characteristic sound when a material is struck on the metallic surface is sonority. So option C is the right answer for the question number 15. Now shift to the question number 16. And your question number 16 is, it is your question number 16. Copper reacts with dilute nitric acid and liberates. कॉपर को जब भी रिएक्ट किया जाएगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, आफ्टर दैट इट लिबरेट्स। ऑप्शन ए इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रिक ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड एंड डी इज द नाइट्रस ऑक्साइड। इट इज योर बेटा क्वेश्चन नंबर 16. तो बेटे मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। बेटा ऑप्शन सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। When copper reacts with dilute nitric acid, it does not liberate nitrogen pentoxide. मुद्रित बेटा ऑप्शन सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। इस क्वेश्चन की बेटे मेरे को आप रिएक्शन बना के जरूर भेजें। रिएक्शन मेंशन करें इसकी कि जब हम कॉपर को रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, आफ्टर दैट इट लिबरेट्स, क्या लिबरेट करेगा, तो उसको आप एक केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में जरूर लिखें आप। ऑप्शन ए बेटा रॉन्ग ऑप्शन है, इट डज नॉट फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तनु बेटा ऑप्शन बी सही ऑप्शन है आपकी, पर इस चीज को आप एक रिएक्शन की फॉर्म में जरूर लिखें, केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में। जब हम कॉपर को रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो वो क्या लिबरेट करेगा। तो मैं भी अब इसकी रिएक्शन बना रही हूं, पर मैं कोशिश आप भी करें बेटे कि क्या रिएक्शन बन सकती है इसकी। सो रिएक्शन इज 3Cu plus 8 HNO3, 8 molecules of nitric acid, and nitric acid it is in the form of dilute form. जब हम कॉपर को रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, आफ्टर दैट इट फॉर्म्स 3CuNO3 ट्वाइस प्लस साथ में क्या बनाएगा बेटे ये 2NO प्लस 4H2O। तो जब हम कॉपर को रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इट फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा वो, नाइट्रिक ऑक्साइड। सो इट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। So option B is the right option for the question number 16. तनु बेटा मैंने आपको कहा था कि इसकी केमिकल रिएक्शन जरूर बनाएं आप, और उस केमिकल रिएक्शन को आप कमेंट बॉक्स में डालें आप। तो जब हम कॉपर को रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इट लिबरेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड। चैनल को बेटे शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स आपके आते रहने चाहिए। नाउ इट इज योर क्वेश्चन नंबर 17।
And your question number 17 is, on addition of which metal the blue colored copper sulfate solution turns into colorless solution? On addition of which metal, किस मेटल को, ये आपके पास चार दिए गए हैं मेटल्स, इनमें से किस मेटल को जब हम ऐड करेंगे तो जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, CuSO4, इट इज कॉपर सल्फेट। तो इस कॉपर सल्फेट में हम कौन सा मेटल जो है वो ऐड करेंगे, और उसके ऐड करने के साथ ही, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है दैट इज इन द ब्लू फॉर्म, इसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है, स्काई ब्लू। तो किस मेटल की एडिशन से जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर्ड है दैट टर्न्स इनटू कलरलेस सॉल्यूशन, तो स्काई ब्लू कलर से कन्वर्ट होकर वो किस में हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन में। ऑन एडिशन ऑफ विच ऑफ द मेटल, ऑप्शंस आर Ag, B Hg, C Zn and D is Au। तनु बेटा बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छे, किपिटा बेटा। कृतिका ने भी सही आंसर दिया है, ईशांत, मुस्कान बेटे बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, वेल डन एंड कीप इट अप टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटे जब हम जिंक मेटल को जब हम ऐड करेंगे किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, तो कॉपर सल्फेट के साथ जैसे हम उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका कलर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिंक is the metal that is to be added when added to the copper sulfate solution, it turns into the colorless solution. So option C is the right answer for the question number 17. Now shift to the question number 18. तो बेटे अब रेस्ट हमारे पास 4 क्वेश्चन है आज के हमारे लाइव लेक्चर के रह गए हैं। 17 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इट इज अवर क्वेश्चन नंबर 18। और बेटे इन क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली आपने लेना है, नोटबुक्स में आपने लिखना है, उनको रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन, ताकि आपके ये एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकें क्वेश्चन। क्योंकि हर चैप्टर से जो है बेटे इंपॉर्टेंट 20 या 22 या 25 क्वेश्चन जो है वो डेली आपके लिए निकाले जा रहे हैं। पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है बेटे आप डेली जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन जरूर रखें। ये नहीं है कि एक दिन आपने लाइव क्लास अटेंड कर ली है फिर उसके बाद 2 दिन के लिए आपने अटेंड नहीं करनी है या 3 दिन के लिए अटेंड नहीं करनी है। डेली अगर आप लाइव क्लासेस को अटेंड करेंगे उसका बेनिफिट तभी मिलेगा आपको। सो इट इज नेसेसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अटेंड द live APS classes daily. So beta it is right. अभी बेटे मैंने क्वेश्चन नंबर 18 रिपीट नहीं किया है, नहीं मैंने बोला है, तो जब तक मैडम क्वेश्चन ना बोले तब तक आप उसका आंसर नहीं दें बेटे। So your question number 18 is the most abundant metal in the earth crust is, सबसे इंपॉर्टेंट या मोस्ट अबेंडेंट मेटल कौन सा है अर्थ क्रस्ट का? ऑप्शन ए इज एल्यूमिनियम, बी आयरन, सी ऑक्सीजन, डी इज द कॉपर। तनु बेटा ऑप्शन सी रॉन्ग ऑप्शन है इसका। ऑक्सीजन इज नॉट द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। प्रशांत बेटे ने आंसर दे दिया है कि डेली क्लासेस जो हैं वो अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दिन की भी लाइव क्लास मिस कर जाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा बेटे। तो अगर आप चाहते हैं कि अपना आपका एक टारगेट है और आपने एक लक्ष्य अपना हासिल करना है तो उसके लिए आपको डेली जो है वो लाइव एपीएस क्लासेस के साथ जुड़ना पड़ेगा। अक्षिता बेटी ने आंसर दे दिया है एंड यस इट इज द राइट ऑप्शन बेटा। प्रशांत बेटा ऑप्शन बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। आयरन इज नॉट द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम।
यस, मुद्दत बेटी ने भी सही आंसर दिया है. Option A is the right answer for the question number 18. Now shift to the question number 19. And your question number 19 is the second most abundant metal in the earth crust is. अब most abundant metal जो था अर्थ क्रस्ट में वो क्या हुआ? एल्यूमिनियम. After that the second most abundant metal that is present in the crust of the earth is. Option A is calcium, B aluminium, C copper and D is the iron. Mudad beta, option A is the wrong option. Calcium is not the second most abundant metal that is present in the crust of the earth. अच्छा, आपने क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दिया मुद्दत बेटे. यस, ऑप्शन ए और सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 की. अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की. क्वेश्चन नंबर 19 की जो सही ऑप्शन है बेटे, बिल्कुल सही आंसर दिया कृतिका ने. गोलू राणा भी है कोई बेटा, उसने भी बिल्कुल सही आंसर दिया. प्रशांत बेटा, ऑप्शन सी इज द रॉन्ग ऑप्शन. कॉपर इज नॉट द second most abundant metal that is present in the crust of the earth. So the right option for the question number 19 is iron. Iron is the second most abundant metal that is present in the crust of the earth and it is the option D. So option D is the right answer for the question number 19. Now shift to the question number 20. तनु बेटा, ऑप्शन सी रॉन्ग ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 19 की. कॉपर जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल नहीं है जो कि प्रेजेंट है क्रस्ट के अर्थ में. प्रशांत ने सही आंसर दिया है. आयरन इज द राइट आंसर. नाउ शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 20. केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज. केमिकल फॉर्मूला बताना है क्रायोलाइट का, क्या है? ऑप्शन इज Al2O3 मल्टीप्लाई बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, B Na3AlF6, C Na2AlF6 and D is NaAlF3. सो हरिए बेटा, जल्दी से इसका आंसर दें. दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर टुडेज लाइव APS क्लासेस. That is your question number 20. Yes, question number 19 की बेटे ऑप्शन डी जो है that is the right answer. Now it is our question number 20 and it is our second last question for our today's live APS classes. Yes, कृतिका बेटी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है regarding the question number 20. The chemical formula of the cryolite, it is very important formula, that is cryolite. बेटा ऑप्शन सी रॉन्ग ऑप्शन है. ऑप्शन सी इज द रॉन्ग ऑप्शन बेटा. So the chemical formula of the cryolite is Na3AlF6. That is option B. Option B is the right answer for the question number 20. So our last question, that is our question number 21 for today's live APS classes. That is your question number 21 and the question number 21 is which of the following reactions cannot occur. आपके पास 4 reactions दी गई हैं, उनमें से कौन सी reaction जो है वो occur नहीं करती है? Mudit beta, you have also given the reason why this reaction does not occur. You have given the right answer, but behind this answer you have also given the reason why this reaction does not occur. अक्षिता बेटे, आप भी इसकी रीजनिंग जरूर दें मुझे कि why this reaction does not occur. ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही है. फर्स्ट ऑप्शन थी आपकी 2AgNO3 plus Fe give rise to FeNO3 twice plus 2Ag. ऑप्शन बी CuSO4 plus Zn give rise to ZnSO4 plus Cu.
Option C, CuSO4 plus 2Ag give rise to Cu plus Ag2SO4, and D is 2AgNO3 plus Zn give rise to ZnSO4 plus 2Ag. So there are 4 reactions, and out of the 4 reactions, which reaction does not occur? So maximum students have given the right answer for the question number 21, but you have also given the reason why this reaction does not occur. ऑप्शन बेटे बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। जो रिएक्शन आपकी अक्कर नहीं करेगी, नहीं एग्जिस्ट करेगी, दैट इज इट इज योर क्वेश्चन नंबर 21, एंड जो आपकी रिएक्शन अक्कर नहीं करेगी, दैट रिएक्शन इज CuSO4, that is in the form of aqueous, plus 2 molecules of Ag, that is in the form of solid, give rise to Cu solid plus Ag2SO4, that is in the form of aqueous. तो ये रिएक्शन जो है, this reaction is the right reaction that does not occur. ये रिएक्शन अक्कर नहीं करेगी, एंड इट इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 21. पर ये अक्कर क्यों नहीं करेगी? बिकॉज जो रीजन है इसके पीछे, बिकॉज Ag is least reactive. Ag is least reactive than copper. अक्षता ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटे, बिकॉज सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट कैन नॉट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स पोजीशन. क्योंकि जो सिल्वर है इट इज लीस्ट रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट कैन नॉट डिस्प्लेसेस, इट कैन नॉट, अक्षता बेटे ने बिल्कुल सही रीजन दिया है, इट कैन नॉट डिस्प्लेसेस copper from its position. So well done Akshita beta, very good, बहुत अच्छे, keep it up. बहुत अच्छा आपने दिया है। मुद्दत बेटे ने भी सही आंसर दिया है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। बेटा आप गलत रीजनिंग दे रहे हैं। रिएक्शन थी आपकी कॉपर सल्फेट प्लस सिल्वर के साथ, कॉपर प्लस सिल्वर के साथ। आप जो मेरे को रीजनिंग दे रहे हैं दैट इज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। आयरन की बेटे यहां कहीं बात नहीं हो रही है। तो बेटा क्यों वो रिएक्शन अक्कर नहीं करती है? बिकॉज सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट कैन नॉट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स position. So on the behalf of that reason this reaction does not occur. So beta this is our last question for our today's live APS classes, and the target that is of 21 questions, and here the target is to be completed. यहाँ complete हो चुका है target हमारा, और अब जो आपकी duty है and your responsibility is to learn and revise all these 21 questions. तो उनको आप रिवाइज करें अगेन एंड अगेन, और जिन बच्चों ने अगर नोटबुक्स में नहीं लिखे होंगे क्वेश्चंस तो उनको ज़रूर लिखें। और कल हमारा जो होगा वो ऑफ रहेगा। अब हम जो मिलेंगे वो मंडे को मिलेंगे इसी टाइम पर, इसी समय पर, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो अब जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि ये नहीं करना है कि एक दिन आपने क्लास लगा ली है फिर 2 दिन के लिए आपने छोड़ देनी है, क्योंकि डेली क्लास लग रही है सिर्फ संडे को छोड़कर। तो मैक्सिमम जो है वो सभी स्टूडेंट्स अपनी पार्टिसिपेशन जरूर रखें। उसका बेनिफिट तभी मिलेगा बेटे जब आप डेली आप जो है वो लाइव एपीएस क्लासेस के साथ जुड़ेंगे। तो लास्टली एक और चीज मैं कहूंगी, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस फॉर मोर वीडियोस, एंड
सब्सक्रिप्शन टारगेट जो है वो आपका बेटे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, 375 का रखा है, तो आपने उस टारगेट को वहां तक पहुंचाना है। दैट इज़ योर ड्यूटी बेटे, वो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उस टारगेट को वहां तक पहुंचाए। एंड लास्टली बेटे, गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक्स बेटा।